नमस्कार, स्टार न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के नेता सीआर केसवन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के जो सबूत मांगे हैं और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो टिप्पणी की है, ये उन्होंने इस्तीफे की अहम वजह बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पार्टी की विचारधारा है वो विचारधारा से सहमत नहीं है और यही वजह है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सीआर केसवन ने ये भी कहा कि कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। ये काफी निराशाजनक है। मैंने महसूस किया कि मेरा राजनीति करने का तरीका पार्टी के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल नहीं हुआ। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ का नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये सीआर केसवन का बड़ा बयान सामने आया है। अपने इस्तीफे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। I can say with all responsibility, I've been a member of the Congress party till the morning for the last 22 years, and I can say that I fairly understand the trajectory of the attitude and approach of the Congress party over the years. Any effective political party, especially an opposition party, needs to have a very well-defined narrative and message for the people. They should ideally take up people-centric issues in a pragmatic way and offer constructive suggestions so that they can eventually win the faith and trust of the people. But unfortunately, over a period of time, I felt that in the Indian National Congress, the attitude and approach, let alone being constructive, has hardly even been concrete, cogent, coherent, or even consistent. Many a time it has been very reactionary and it's been very cynical, very unfortunate. I can give two examples. When Draupadi Murmuji's nomination was announced, I've said that the values which I work for have changed, because in 2002, you remember great Abdul Kalamji, the nomination was given by Vajpayee and the NDA. So Congress party supported the nomination. I was there at that time. So we met him in Anna University also. But now when Draupadi Murmuji's nomination was announced, first tribal woman, such a proud moment for every Indian, politics. It's just she's come from such a humble background with a sheer hard work and dedication. All of us should have been proud and celebrated this. But senior working committee member of the party says Draupadi Murmuji represents an evil philosophy. It's not correct. Another person says no country should get a president like this. No right-thinking person will agree with all these things. Second thing, if you realize in another instance, see, this is not just one instance. This is not an exception to the rule. This has become the norm. January 23rd, the government announced naming 22 islands after Paramveer Chakra awardees. And you know that the Paramveer Chakra awardees, out of 21, 14 of them were posthumous. It was given after they died protecting us and our country for this great nation. They sacrificed their lives. You don't need to even comment if you're not comfortable, but senior leader in the Congress party says, where is the proof of the surgical strike? Give me proof. It's very, very hurting. I mean, politics aside. So this is, over a period of time, you felt that your value system, your faith and conviction in a certain way to do politics is not in line with the party. So I decided, which is why I didn't participate in the Bharat Jodo Yatra also. And I felt this is, when I looked around, I felt honestly I don't belong here anymore. So I tendered my resignation. तो आपने सीआर केसवन को सुना, किस तरह से वो पार्टी से खासा नाराज हैं और कहीं न कहीं पार्टी की जो विचारधारा है वो दरअसल उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती है, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीआर केसवन की अगर बात की जाए तो देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पोते सीआर केसवन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। केसवन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की वजह बताई है। कई वजह उनकी तरफ से बताई गई है, जिसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक के बार-बार सबूत मांगे गए वो एक वजह है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से की गई, जिस तरीके से
राष्ट्रपति के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे नाराज थी। ये बात भी सीआर केसवन को रास नहीं आई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 दशकों से ज्यादा लंबे समय तक समर्पण भाव के साथ काम करने के बाद भी उन्हें कुछ भी कांग्रेस पार्टी में हासिल नहीं हुआ। उन्होंने चिट्ठी में ये भी कहा है कि मैं पार्टी की विचारधारा के साथ सहमत नहीं हूं। यही कारण है कि मैंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठनात्मक जिम्मेदारी लेने से साफ तौर पर इनकार किया और भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने से भी मैंने परहेज किया है और यही वजह है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। केसवन ने यह भी कहा है कि मैं पिछले 22 सालों से कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ मुझे लगता है कि कांग्रेस में रवैया और दृष्टिकोण न तो रचनात्मक था और न ही ठोस। जिन मूल्यों के लिए मैंने काम किया वो बदल गए थे। आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कोई नेता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे रहा हो, बल्कि इससे पहले दरअसल कई लोग जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। फिर चाहे वो AK एंटनी के बेटे हों जिन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले अब बात चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाए या फिर जितिन प्रसाद की जाए, तमाम ये पार्टी के बड़े लीडर जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि पार्टी में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। पार्टी की विचारधारा दूसरे ट्रैक पर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान में उनकी सुनवाई ही नहीं होती है। तो उस तरीके से कहीं न कहीं जिन नेताओं को नजरअंदाज कांग्रेस पार्टी ने किया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है। फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, फिर चाहे वो जितिन प्रसाद हो, सुनील जाखड़ हो, चाहे फिर वो गुलाम नबी आजाद हो, और उसके बाद भी लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो कांग्रेस पार्टी में जारी है। आपको ये बता दें कि केसवन ने ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि एक बार पार्टी छोड़ने के बाद मुझे कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में राजनीति की जा रही है उससे मैं सहज बिल्कुल नहीं हूं और पार्टी छोड़ना ही सही है। मैंने आज यही किया है, ये भी केसवन ने कहा है। और साफ तौर पर उन्होंने नाराजगी इसी बात को लेकर जाहिर की है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, ये काफी निराशाजनक है। आपको ये बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, राहुल गांधी भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं और यही वजह है कि केसवन ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने महसूस किया कि मेरा राजनीति करने का तरीका पार्टी के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल नहीं हुआ और मुझे लगा कि अब मैं यहाँ का नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है वो उन्होंने अपने इस्तीफे में किया है। लेकिन ANI से बातचीत करते हुए CR केसवन ने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता और साथ ही अपने दादा का भी जिक्र किया। उनके जो दादा हैं वो देश के पहले गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी हैं और उनके पोते हैं CR केसवन। जाहिर तौर पर एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। काफी नाराजगी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, यानी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, ये उन्हें रास नहीं आया। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चीन के साथ भारतीय सेना जिस तरीके से मुकाबला करती है उसका भी किस तरीके से बखान राहुल गांधी करते हैं, किस तरीके से सेना का अपमान राहुल गांधी करते हैं। और इतना ही नहीं, जब एक आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत बीजेपी ने किया, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। ये बात भी उन्हें रास नहीं आई और यही तमाम वजह बताते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।